Hello students, welcome you all. Today our topic of discussion is changes, and these changes can be of two different types. Let's see, in the nature we used to see different type of changes, and that can be slow or fast, they can be reversible, irreversible. On the basis of many things, we divide the reactions or the changes in two types, that is physical and chemical changes. So to know about this, to understand it clearly, there are two terms which must be clear. The first is physical property. What is the physical property of any substance? This physical property can be observed or measured without changing the composition of matter. Means those property which we get without changing the composition. Means that, and this physical property used क्यों होती है? It is used to observe and describe the matters. Example: appearance, texture, color, odor, melting point, boiling point, density, solubility, etc. Now come to the chemical composition. Chemical composition, how will you define this? Actually, this chemical composition is the property of that substance which we define as the arrangement. Okay, arrangement, ratio and the type of atom in molecules of chemical substance. Means अगर दो substances होंगे तो उनका अलग अलग हैं, तो उनके जो molecules हैं उनमें जो atoms है वो या तो different होंगे या उनका जो ratio होगा जिसमें present है वो different होंगे along with the arrangement. तो ये हो गया आपका chemical composition. Actually this whole chemical composition जो process है या chemical composition जो term है, यही इन दोनों physical और chemical change में differentiate करता है. ये है keyword. Chemical composition is the keyword, याद रखना है हमें. Okay. नाउ अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस जो भी हैं, ठीक है, इनको स्टडी कैसे किया जाए. तो इनको स्टडी करने का बेस्ट वे है कि इनके बीच में डिफरेंस देखना. तो जो फर्स्ट डिफरेंस है, अगर आप देखेंगे, हम वन बाय वन सारे डिफरेंसेस को देखेंगे एंड विल गेट अंडरस्टैंड एक्चुअली कि ये है क्या. तो पहला पॉइंट देखिए क्या है. पहला डिफरेंस, फिजिकल चेंजेस क्या है? इट अंडरगोज ओनली, जिसमें क्या होता है कि केवल फिजिकल प्रॉपर्टी ही एक तरीके से चेंज, मीन्स द केमिकल कंपोजिशन रिमेन सेम डिस्पाइट इट्स मॉलिक्यूल्स बीइंग रीअरेंज. रीअरेंज्ड का मतलब जैसे लिक्विड है, सपोज हमने वाटर लिया, अभी लिक्विड फॉर्म में हमने उसे गैस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गर्म करके, तो जो मॉलिक्यूल्स है थोड़ा दूर हो गए. हमने उसे सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया आइस, तो मॉलिक्यूल थोड़ा पास हो गए. तो रीअरेंज तो हो जा रहे हैं बट उनका केमिकल कंपोजिशन H2O रिमेन H2O. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 2:1 ही रहेगा. But in case of chemical changes, when the substance undergo a chemical change, its molecular composition is changed entirely. ठीक है, मीन्स जो केमिकल कंपोजिशन है, एटम्स के बीच में जो रेशियो था, उनके बीच में जो केमिकल बॉन्डिंग है वो डिफरेंट हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी. एंड दिस, ड्यू टू दिस केमिकल कंपोजिशन चेंज, यू विल गेट द न्यू सब्सटेंस. नाउ द सेकेंड पॉइंट, physical change is a temporary change and the chemical change is a permanent change. ये याद रखना है, because physical change we can recover the substance, but in case of chemical change we can't recover, means it is permanent. Now the third point, physical change affect only physical property like shape, size. Very simple example, again and again I will recite that water from water to ice and from water to steam, and it will be reversible and you will get the shape of ice different, you will see the shape of steam is different. So size, shape, it will mean the physical property is different. In case of the physical changes, it is going to change, but in case of chemical change, the physical as well as the chemical property will change. Means chemical property, again it means the chemical composition, as we are getting the new substance. तो न्यू सब्सटेंस है तो जाहिर सी बात है कि उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सब पहले वाले सब्सटेंस से बिल्कुल अलग होगी. नाउ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट डिफरेंस,
फिजिकल चेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्चुअली. फिजिकल चेंज, इफ वी ऑब्जर्व केयरफुली वी विल फाइंड दैट देयर इज नो इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एट लार्ज क्वांटिटी. थोड़ा बहुत होगा बट बहुत लार्ज क्वांटिटी पे नहीं होगा. बट इन केस ऑफ द केमिकल चेंज आइदर एब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस. एग्जाम्पल देख लेते हैं. अगेन वही वाटर का, वाटर मेल्ट हो रहा है, बॉयल हो रहा है, तो थोड़ी बहुत एनर्जी ले रहा है. बिना एनर्जी के वो बॉयल नहीं होगा, स्टीम में नहीं कन्वर्ट करेगा. बट अगर हम केमिकल चेंज की बात करें, बर्निंग ऑफ कोल, रस्टिंग, इट विल इन्वॉल्व और इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी. देन द नेक्स्ट, यू कैन से द नेक्स्ट वन, जो फिजिकल चेंज है आपका, मैंने अभी आपको बताया कि इन रिलेशन विद द एनर्जी फिजिकल चेंज में है बट इट इज़ वेरी लिटिल. बट इन केस ऑफ केमिकल चेंज evolution and absorption of energy will takes place. And the last is what? Physical change is easily reversible. What does it mean? The original substance can be recovered, okay, but the chemical changes are irreversible, means the original substance cannot be recovered. Now you can see some pictures with the physical and chemical changes. I am sure that you are getting everything. Let's see more examples like melting of ice. What is this? Melting of ice, it is physical process, physical change. It is slow process and you know it is reversible. Burning of candle, ध्यान दीजिएगा, burning of candle if I say, अगर मैं कहती हूँ melting of candle तो वो क्या है? फिजिकल है. बट बर्निंग के बाद क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और भी बहुत सी गैसेस रिलीज होती हैं. मीन्स द बर्निंग ऑफ कैंडल इज केमिकल चेंज एंड इट इज ऑल्सो इरिवर्सिबल. देन द कर्डलिंग ऑफ मिल्क, मिल्क से कर्ड बनना, ये क्या है? आप कर्ड से दोबारा मिल्क नहीं बना सकते. और मिल्क और कर्ड का जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है बिल्कुल डिफरेंट है. उस पर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया काम करता है और उसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया काम करता है और उसे एसिड में कन्वर्ट कर देता है इसके प्रोटीन को. मीन्स दैट इज अ केमिकल चेंज एंड इट इज ऑल्सो इरिवर्सिबल. नो ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास में टूट तो जाता है ग्लास, ये बहुत फास्ट प्रोसेस भी है, बट क्या ग्लास के दोनों पार्ट का कंपोजिशन चेंज होता है? नो. ठीक, तो ये हैं कुछ एग्जाम्पल्स. अब इसके साथ साथ दो टर्म्स भी हैं, तीन मुझे कहना चाहिए, उसे भी देख लेते हैं. केमिकल रिएक्शन क्या है? दोज केमिकल चेंजेस, और या हम कह सकते हैं वो प्रोसेसेस विच इन्वॉल्व दोज प्रोसेसेस विच इन्वॉल्व द केमिकल चेंजेस एंड वी गेट न्यू सब्सटेंस फ्रॉम वन सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन. अब जैसे ही केमिकल रिएक्शन होता है आपको दो चीज़ें मिलती हैं, एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट. ठीक है, क्या होता है देख लेते. Substance which undergo a chemical change in the reaction is called reactant, whereas the new substance which are formed are called product. तो ये थी पूरी कहानी चेंजेस की, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस की. प्लीज just see all the differences and try to observe the changes, try to differentiate or classify the changes in physical and chemical changes which you observe in nature. It is actually the science. जब आप साइंस को प्रैक्टिकल लेवल पे करते हैं तब आप सच में सीखते हैं. सो ट्राई टू प्रैक्टिस ओनली, ट्राई टू ऑब्जर्व कि यस व्हाट इज दिस, ये कौन सा चेंज है. ओके, it was all from my side. Thank you very much, students. Stay here.